Hello, students, and welcome to E-Classroom of English. Once again, your English instructor, Harpreet Kaur, is with you to have your enjoyment and fun in English classroom. And our today's topic is prepositions. Yes. So let's get started and open your books. So, firstly, let us see what is the definition. A preposition is a word that links nouns and pronouns to some other words in a sentence. Preposition sentence में वो words होते हैं जो अदर वर्ड्स को नाउन्स और प्रोनाउंस हम नाउन्स एंड प्रोनाउंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ब्रेकफास्ट एट 10 a.m. Suppose if I will say she had breakfast 10 a.m. So how would you know कि at 10 a.m. मतलब 10 बजे लिया था या 10 बजे से पहले लिया था, 10 बजे के बाद लिया था. ठीक है. सो यू विल नॉट नो द टाइमिंग्स. सो जब तक आप उस वर्ड को नहीं लगाएंगे एट वर्ड को, यू विल नॉट कम टू नो दैट नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ उस वर्ड का क्या कनेक्शन है. हेंस the preposition is a word that links nouns and pronouns to some other words. क्योंकि जब तक आप prepositions नहीं लगाएंगे, there will be no link of the words in the sentence. Second example, the book is on the table. But if I'll say the book is the table, that means book table है. So the sentence will be wrong. So on word is telling you कि book कहाँ पर है? टेबल पर रखी हुई है. It is touching the surface of the table. टेबल पर है. So on word will tell you that what is the location or the position of the noun book. It is on that table. But अगर मैं on word नहीं लगाती, if I would use under, that means table के नीचे है book. ठीक है. So these words on, at, under, above, these tells us the location. Sometimes they also tell us the time. See, the first example was telling you the time at 10 a.m. बिल्कुल 10 बजे exactly. Now, third example, he is sitting beside his brother. Beside means side में. तो here also you are coming to know about the position कि वो चीज़ या फिर वो जो person है वो कहाँ है next to the brother. So at, on, beside यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं? They are telling you the timing, they are telling you the location, or you can see the position of the nouns or the pronouns in the sentence. Hence they are the prepositions. Let us move further and let us see kinds of prepositions. Girls, based on my explanation, there are three kinds: place, movement and time. Yes, preposition of place will tell you about the place of the nouns. Preposition of movement will be telling you about the changing movement positions or the locations of the nouns. And preposition of time will tell you the timing at which what that action and that noun has been going. So let us explain them one by one. We'll get understand by through examples. Prepositions of place. First example, as I told you, they will tell you the location कि कहाँ पर है वो object, noun कहाँ पर है. It is telling you the position of the noun. For example, at will tell you the exact place, exact location. For example, if I say the students are at school, that means at school, near the school नहीं कहा है मैंने, at school कहा है. At is telling you the exact place, कहाँ पर है students, school में है. तो you will use at because exact location, exact point आपको पता है. In क्या होता है? In is telling you the yes, the name of the place or the container or the area जिसके अंदर कोई चीज़ हम जब रखते हैं किसी चीज़ के अंदर, that time we say that it is in that particular thing. वो किसी चीज़ के अंदर है. For example, I am sitting in the room. मैं अंदर कमरे के अंदर बैठी हूँ. The toys are in the basket. You can see in the picture ना. The toys are in the basket. Basket के अंदर पड़े हुए हैं. But if I say the ball, ball कहाँ है? Ball is outside the basket. So I can use the word ball is outside the basket. तो यहाँ पर हम in use नहीं कर सकते हैं. But outside is also a place. Preposition of place. Third example is on. On means जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है. Touching that particular surface. Because it is used for the surface area to indicate where something or someone is. कहाँ पर है कोई चीज़. Suppose cat is sitting on the table. Table के ऊपर बैठी है तो टेबल को टच किया होगा उसने. That cat is touching that surface. Hence you can say that the cat is on the table. Under the table होगी तो टेबल के नीचे है तो टेबल को टच नहीं होगा. On the table means उसके ऊपर है and that too it is touching the surface of the table. यहाँ पे example देखिए पिक्चर में. You can see the books are on the table. Yes, touch करके रखी है ना यहाँ हवा में. No, because they are touching that surface. Hence I am using the word on the table. Preposition on the table.
नाउ मोर एग्जाम्पल्स बिटवीन, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में. सपोज दो लैपटॉप्स पड़े हुए हैं और बीच में एक टेडी बियर है, so I can say that the teddy bear is between the laptops. In this example the girl is sitting, किसके बीच में बैठी है? पेरेंट्स के बीच में, मम्मा और पापा. सो जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ होती है या दो चीज़ों के बीच में कोई और थर्ड चीज़ होती है, दैट टाइम वी कैन से दैट इट इज़ बिटवीन देम. अंडर कब यूज़ करते हैं? आई जस्ट गिव एग्जाम्पल, जब वो कोई चीज़ किसी के नीचे होती है. लाइक देखिए एग्जाम्पल में डॉग कहाँ सो रहा है? वेयर इज़ द डॉग स्लीपिंग? येस, इट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है. एंड इट इज़ नॉट टचिंग द सर्फेस ऑफ द टेबल, टेबल के सर्फेस को टच नहीं किया हुआ है, हेंस इट इज़ अंडर द टेबल, नीचे. सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. यू कैन सी द आउल, सबको दिख रहा है आउल, बॉल भी दिख रही है सबको. सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आउल कहाँ है? इट इज़ बिहाइंड द बॉल, पीछे है. बिसाइड द बॉल मीन्स बॉल के साइड में है आउल. ऑन मीन्स उसके ऊपर बैठा है. अंडर मीन्स उसके नीचे. येस, बिलो दैट. बिटवीन मैंने आपसे कहा था बीच में, दो बॉल्स के बीच में. व्हाट इज देयर? देयर इज एन आउल बिटवीन द टू आउल बॉल्स. एंड इन मतलब अंदर. क्या है ये? बॉक्स के अंदर. येस, द आउल इज, और यू कैन से द बॉल इज इन द बॉक्स. इन फ्रंट मीन्स किसी चीज़ के सामने. नियर मीन्स बराबर में. अबाउ मीन्स ऊपर. बट इट इज़ नॉट टचिंग दैट. देखो बॉल को टच कर रहा है वो? नो, इट इज़ नॉट टचिंग. अगर वो टच कर लेता तो हम कौन सा भी वर्ड यूज़ करते हैं? गेस गेस, हरी अप, आई जस्ट टोल्ड यू, ऑन. जब उसके ऊपर होगा और टच होगा तो यू विल यूज़ ऑन. ऊपर है बट टच नहीं है तो यू विल यूज़ अबाउ. सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट. ठीक है, सेकेंड काइंड प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स जब प्लेस चेंज हो रही है, एग्जैक्ट जगह नहीं पता चल रही है आपको, जगह चेंज होगी एक जगह से दूसरी जगह. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज टू, टीओ टू. टू मीन्स इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ डेस्टिनेशन और अ डायरेक्शन. जिस जगह आपको पहुंचना है या जिस जगह आप जा रहे हैं, वट एवर प्लेस यू आर गोइंग, वेर एवर यू आर गोइंग, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है? रीचिंग पॉइंट क्या है? टू स्कूल, तो उसके लिए आप टू स्कूल लगाएंगे. टूवर्ड्स मीन्स के तरफ, किसी डायरेक्शन में आप अगर जा रहे हैं, इन अ डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ के तरफ, किसी पर्सन की तरफ, किसी लोकेशन की तरफ, दैट टाइम यू कैन यूज़ टूवर्ड्स. लाइक द लायन इज कमिंग टूवर्ड्स मी, लायन जो है मेरी तरफ आ रहा है. शी पुश्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम, उसने अपना फेस उसकी तरफ कर लिया. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टूवर्ड्स. थ्रू मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, बट इन समथिंग, किसी चीज़ के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ जाना. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जब टनल से क्रॉस होते हैं, ट्रेन क्रॉस होती है टनल के अंदर से, या इफ़ यू आर पासिंग एनी जंगल, फॉरेस्ट और वुड्स यू कैन से, तो एट दैट टाइम यू यूज़ थ्रू. लाइक डेविड वॉक थ्रू स्लोली थ्रू द वुड्स, मतलब जंगल के से आर पार निकला होगा. सो ही हैड पास्ड फ्रॉम द वुड्स ना, वो निकल कर गया होगा उसमें से, हेंस वी आर यूजिंग द वर्ड थ्रू. इनटू, जब किसी चीज़ की जगह एक जगह से दूसरी जगह में जाती है. फॉर एग्जांपल मैंने इफ़ आई से आई एम पोरिंग द वाटर फ्रॉम जग इनटू द ग्लास, तो मैं ग्लास का मैं पानी डाल रही हूँ, बट किस में से डाल रही हूँ? जग में से. सो पोजिशन इज गेटिंग चेंज, तो एट दैट टाइम आई विल से इनटू. अच्छा, वन मोर एग्जाम्पल. सपोज आई एम सिटिंग राइट नाउ, वेयर आई एम सिटिंग इन रूम, इन माई रूम. तो आई एम नॉट यूजिंग इन टू माई रूम बिकॉज ऑलरेडी आई एम देयर, मैं ऑलरेडी वहाँ पर हूँ. बट एट वॉट टाइम आई विल यूज दिस वर्ड इनटू. इनटू मैं कब यूज़ करूँगी? येस, व्हेन आई एम चेंजिंग द पोजिशन. से फॉर एग्जाम्पल आई से माई मदर इज एंट्रिंग इन टू द रूम, मम्मा रूम में आ रही है. सो एट दैट टाइम मम्मा इज चेंजिंग द प्लेस, बाहर से वो अंदर आ रही है, तो यू कैन से इन टू द रूम. क्लियर? डोंट पुट द न्यू वाइन बॉटल इन टू ओल्ड बॉटल्स. तो जगह चेंज होनी है यहाँ पर लिक्विड की, न्यू वाइन को ओल्ड बॉटल में डालने की बात चल रही है. सो पोजिशन ऑफ दैट वाइन विल बी चेंज. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ओवर. ओवर एज आई टोल्ड यू, जब कोई चीज़ टच नहीं होती, ऊपर होती है, एट अ हायर लेवल, थोड़ा सा ऊंचा. लाइक ही जम्प्ड ओवर द बॉल, ओवर द वॉल, सॉरी, जब वॉल को यहाँ से कूदा और दूसरी तरफ कूद के उस तरफ गया. सो दैट मीन्स वॉल को टच करे बिना दैट ही क्रॉस्ड ओवर दैट. द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर है बट इट इज़ नॉट टचिंग माई हेड, कवर कर रहा है मेरे सिर को, कवर करते हुए दूसरी तरफ तक जा रहा है. हेंस आई कैन से दैट द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड. नाउ टॉकिंग अबाउट अक्रॉस. अक्रॉस मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाना किसी ओपन प्लेस में, वो था क्लोज्ड एरिया, थ्रू. ठीक है, जैसे कि द ट्रक स्किप साइडवेज अक्रॉस द रोड, या ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, रिवर पे क्रॉस करते हुए गया.
and so on. So hope you are clear with the prepositions of movement. Now talking about preposition of time. What are preposition of time? Yes, they will tell you about the timings. At will tell you the exact time. बिल्कुल सही जब समय पता हो, like at 8 o'clock, at 10:30 a.m., at 12 o'clock and so on. At bedtime, क्योंकि कब bed time भी exact होता है. Breakfast time, at dinner time and so on. In will tell you about months. ठीक है, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज. बड़ा टाइम पीरियड होगा ना, एट दैट टाइम यू विल यूज इन, लाइक इन 1991, इन दिसंबर, इन 16 ईयर्स टाइम एंड सो ऑन. बड़े पीरियड टाइम पीरियड के लिए हमेशा वी विल यूज इन द preposition ऑफ टाइम. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑन हम यूज करते हैं डेज के लिए एंड डेट्स के लिए. लाइक आई से on Monday there is a holiday. So for day, what I'm using? On. If I say date, on 12th October, I'll be going for a picnic. ठीक है, तो इन दिस डेट व्हाट आई एम डूइंग, डेट के साथ भी मैं ऑन यूज़ करूँगी. ठीक है, क्रिसमस या फिर दिवाली या एनी अदर फेस्टिवल यू विल से ऑन क्रिसमस, ऑन दीपावली. लाइक अब दिवाली आने वाली है, सो व्हाट यू कैन से, on Diwali I will wear a new dress. On Diwali I will give a new I will get a best gift from my parents and so on. So you can use on word for the exact day or sorry, dates or days. Now some other preposition of times are also there. During means जब आपको duration पता होता है, like during summer I always go to my grandmother's house. During means duration में, उस duration में, summer duration में आप कहाँ जाते हैं, पूरा 1 month या 1.5 month अपने ग्रैंड माँ के घर पे. एंड वे वी यूज बाय मीन्स द लास्ट टाइम, जिस समय तक आप उस काम को कर लेंगे. इट विल डिनोट द लेटेस्ट टाइम. लाइक शी विल रीच बाय 7 PM, 7 बजे तक वो आ जाएगा. बाय मंडे वी हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब मंडे तक हमें असाइनमेंट कंप्लीट करना है. फॉर इज़ यूज फॉर द टाइम पीरियड. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पता है कि आपने कोई काम 3 hours तक किया है या 4 hours तक किया है या 1 year या 10 minutes वॉट एवर, तब हम लोग टाइम पीरियड पता होगा. एट दैट टाइम वी विल यूज़ फॉर. ही वर्क फॉर 3 hours, आई स्लेप फॉर 10 hours. कितने घंटे सोई हूँ मैं, 10 hours. तो आपको टाइमिंग पता है आप कितने घंटे सोए, कितना ड्यूरेशन. सो फॉर 1 year आई हैव लिव्ड इन मुंबई, मैं 1 साल तक मुंबई में रहा था एंड सो ऑन. सो आपको ड्यूरेशन पता होगा, 3 hours, 10 minutes या 1 year, कितना भी, तो यू विल यूज़ फॉर. एंड सिंस कब यूज़ करेंगे, ड्यूरेशन नहीं पता होगा, यू विल नो द स्टार्टिंग टाइम. सिर्फ आपको स्टार्टिंग टाइम पता होगा, कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई थी. लाइक आई हैव बीन वर्किंग इन सेक्रेड हार्ट सिंस 2018. सो अब क्या करेंगे, 2018 से मैं काम करते चली आ रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ. दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है. सो आई विल यूज सिंस 2018, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग आई एम जस्ट वर्किंग इन किचन. ठीक है, सुबह से मैं किचन में काम कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ. सो उस सेंस में व्हाट आई विल यूज़, सिंस. फ्रॉम मतलब कब से और कब तक के साथ. फ्रॉम एंड टू आर मोस्टली यूज टुगेदर. ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, या फिर शी प्रेड फ्रॉम 7 to 7:30 एंड सो ऑन. So hope you are clear with all the kinds of preposition, and do watch the video more and more times. If you have any confusion, definitely the confusion will be clear. Chaliye, bye bye, take care, and thank you so much for watching the video. Bye.